So today we will be studying leverage analysis, and we will complete leverage analysis and then we will start with dividend decisions. Okay. So there are two types of cost. Everyone knows that there is a variable cost and a fixed cost, right. So in leverage analysis what we study is the impact of fixed cost on the valuation of a firm. Okay. So if there is a change in fixed cost, will it impact the profits of the company or not, right. So we start with sales first. Suppose, so this is concerned with what? Fixed expenses of a firm. Right. So suppose the sales of XYZ is rupees 10,000 rupees. Their variable cost is 6,000 rupees. So what we get when we subtract variable cost from sales? What we get here? Contribution. So the contribution now is 4,000 rupees. After contribution what we do? Less fixed cost, right? Suppose the fixed cost is rupees 2,000. Now what we get? 2,000 is profit. As earning before interest and tax, right. Suppose there is an interest obligation of rupees 1,000. So now what we will get? We will get profit before tax, right, which will be 1,000. Now suppose there is a 40% tax rate. So tax at the rate of 40%, 400, 600 will be profit after tax. And if we divide this with the number of shares, we get earning per share, right. So in this is variable, this can change, fluctuate, and accordingly your variable cost will change. As the sales fluctuate, the variable cost also change accordingly. So all these three things till here can fluctuate, these are variable. Now this is what? This is fixed, okay. So till here there is a fluctuation, this is fixed. If this changes, contribution or anything here changes, this will also change, right. So whatever is variable, I am marking that. Contribution can change, your earning before interest and tax can change, interest obligations are fixed, and your profit before tax can also vary, right. So in leverage analysis there are three types of leverages. One is operating leverage, then you have financial leverage, and then you have a combined leverage. So these are what kind of variable cost? You have rent here, you have salaries, these are related to your operating expenses, right. This is what type of a cost? This is a financial cost, because you have raised some sort of debt or loan and you are paying interest on that. So till here this comes under the calculation of operating leverage, okay. And the change that arises due to the interest payment comes under your financial leverage. Financial leverage, and this combined, starting from sales till the impact on profit before tax, is what? This is a combined leverage. This can also be derived when we multiply financial leverage and operating leverage, okay, into operating leverage. तो operating leverage क्यों arise होता है? Because of the fixed cost of the manufacturing unit or whatever we have, right. This arises, financial leverage arises because of the fixed obligation of the interest payment, right. When we combine these both, we have a combined leverage of a firm. Now leverage works both ways, okay. First let us calculate these leverages.
लेवरेज का मतलब क्या होता है कि जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन की वजह से या तो आपको एक एडवांटेज मिल रहा है या डिसएडवांटेज मिल रहा है आपके प्रॉफिट्स पे, ठीक है। अगर आपका 1% चेंज यहाँ पर होता है तो कितना % चेंज आपका यहाँ पर आ रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, इसके 1% चेंज से इस पे कितना % चेंज आ रहा है ये आपको बताएगा ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। कि अगर मेरा 1% इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो इधर क्या इम्पैक्ट आएगा फाइनली, ऐसे ही इधर के चेंज से इधर का इम्पैक्ट आएगा वो आपको बताएगा फाइनेंशियल लेवरेज। ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है तो अगर आपका सेल्स बढ़ता जाता है तो यू हैव एन एडवांटेज, ये बहुत अच्छा ऊपर बढ़ता जाता है, और सेम है यहाँ पे होता है। लेकिन अगर आप लॉस करने लग जाते हो तो ये ऑपोजिट वे में वर्क करता है और आपका लॉस और ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है, ठीक है। तो हम पहले शुरू करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज से। फॉर्मूलेज बहुत ईजी हैं, ठीक है। पहले एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके और अल्टरनेटिव फॉर्मूलेज भी हैं दोनों के, तीनों के। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं है, जो भी चेंज हो रहा है ना आप उसको डिवाइड करके लिख दो, जो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर और नीचे जो भी वेरिएबल चीज़ें हैं ना उनको बस आप डिवाइड कर दो, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सेम हेयर, जो फिक्स्ड से ऊपर नीचे है उन दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इधर हमें कंबाइंड निकालना है ऊपर से नीचे तक का, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, चाहे आप कंट्रीब्यूशन भी ले सकते हो, सेल्स भी ले सकते हो, एक ही बात होती है, जितना इम्पैक्ट यहाँ आता है उतना इम्पैक्ट यहाँ पर भी आता है। अगर 20% सेल्स इंक्रीज हो जाएगा तो आपका कंट्रीब्यूशन भी 20% इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी फिर 20% इंक्रीज होगा एंड अल्टीमेटली ये भी 20% इंक्रीज होगा। तो यू कैन राइट कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, सेल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इनका पहला फॉर्मूला है तीनों का। अब इनका वैल्यू कैलकुलेट करते जाए। So the contribution is how much? Rupees 4,000. How much is earning before interest and tax? Rupees 2,000. So this is 2 times. Right. So if there is a 10% change in sales, there will be a 20% change in earning before interest and tax. ठीक है, अगर सेल्स 10% से इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20% से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल लेवरेज कितना आएगा, हाउ मच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2000, हाउ मच इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो दिस इज ऑल्सो 2 times, right? Here how much is sales, 10,000, and how much is profit before interest and tax, 1,000, right? If we take contribution here, then it will be, contribution is how much, 4,000, right? So that will be 4 times, and we can also calculate this by multiplying this and this. So you'll have 2 into 2, which is also equals to 4 times, right? So if we'll change, if there is a change of 20% here, how much change will be here, profit before tax 4 times, that means 80%, right? So देखो 2 तरीके होते हैं इसमें पूछने के, या तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हमें वी वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय 30%, राइट? सो हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज शुड बी देयर इन सेल्स, तो आप कैसे करोगे? पहले तो हमें ये पता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड देन वी कैलकुलेट सेल्स, राइट? तो ये कितना टाइम्स है इसके, क्या इन दोनों 30% हमें इंक्रीज करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज आवर टारगेट कि यहाँ पे 30% इंक्रीज होना चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि हम सेल्स कितना इंक्रीज करें उसके लिए ताकि यहाँ पे 30% इंक्रीज हो जाए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम ऊपर से नीचे आते हैं
तो विल मल्टीप्लाई, ठीक है। और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं देन वी डिवाइड। तो अब हमें 30% चाहिए और इन दोनों के बीच में कितना क्या है, इन दोनों के बीच में फाइनेंशियल लेवरेज, राइट। फाइनेंशियल लेवरेज कितना है, 2 टाइम्स, राइट। सो विल डिवाइड, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 15% का इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अर्निंग बिफोर एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स 15% इंक्रीज होना चाहिए। अब इसके और इसके बीच में कौन सा लेवरेज है, ऑपरेटिंग लेवरेज है। तो अब यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, सो दिस विल बी 7.5। तो अगर इफ वी वांट टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय 30% देन वी नीड टू इंक्रीज आवर सेल्स बाय 7.5%। अब ये जो हमें एडवांटेज मिल रहा है किसकी वजह से, लेवरेज की वजह से, ठीक है। अब इसका जो सेकंड फॉर्मूला होता है इन तीनों का, उसके लिए यू शुड नो कि परसेंटेज चेंज कितना आया है, क्योंकि वो परसेंटेज में होता है। तो सपोज हम कैलकुलेट करते हैं कि 20% इंक्रीज हो गया है हमारा सेल्स, तो अभी कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 10,000 इज 2,000, सो इट बी 12,000। ये भी 20% फिर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल्स के, तो इसका 20% इंक्रीज और कितना होगा, 1200, सो दिस विल बी 7,200। नाउ व्हाट विल गेट, 4,800, राइट। अब यू कैन चेक, देखो कितना चेंज आया है, इसमें भी 20% ही चेंज आया होगा, ये भी 20%, ये भी 20% ही चेंज आया होगा, ठीक है। नाउ विल सब्ट्रैक्ट व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, सो विल सब्ट्रैक्ट 2000, व्हाट विल गेट 2,800। अब इन दोनों में कितना चेंज आ रहा है, 800 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 40%, तो हो गया ना, यहाँ पे इसका 2 टाइम्स हो गया ये, ठीक है। 40% चेंज आपका यहाँ पर आया, ये सेम रहेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन विल बी सेम, सो हाउ मच विल बी लेफ्ट विद 1800। अब ये इसका कितना है, 80%, ठीक है। फिर इसका 2 टाइम्स हो गया और इसका 4 टाइम्स हो गया, राइट। अब जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो परसेंटेज चेंज से कैलकुलेट होता है। इनके सेकंड फॉर्मूले, सो इधर क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। इधर क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इधर क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग पर शेयर भी, वी कैन ऑल्सो पुट अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय, क्योंकि सब में यहाँ पे भी आप कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, सेल्स भी कर सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि तीनों में सेम ही परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन व्हाट, सेल्स और कंट्रीब्यूशन राइट। सो इफ वील कैलकुलेट दिस, परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, 40% डिवाइडेड बाय which is 20%. So this is also giving us 2 times, right? How much percentage change in profit before tax? How much? 80%. And this is 2 times.
No, this will be, no, this will be 4 times. 2 times into 2 times, this is combined leverage, will be 4 times. So how much is the percentage change in profit before interest and tax? 80. How much percentage change in sales or contribution? 20%. So this will be 4 times. ठीक है, तो ये आपके 3 लेवरेज होते हैं. Should I rub this off? ठीक है, तो इसको 1 मिनट हटाते हैं. आप suppose they say the firm target is to increase their earning before interest and tax by 40%, not 40, take it 20%. So how much increase they need to have in sales? Your name? Manisha. क्लास ले रही किस लिए? Corporate finance. ओके. साइन नहीं किया पीछे? नहीं, साइन कर दिया. ओके. आपने फोटो लगा रखा है? हाँ. अब बैंक अकाउंट का जो फर्स्ट पेज है इस पर आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड वो ला के अब अभी तो नहीं होगा आपके पास ठीक से. नेक्स्ट क्लास होगी या फिर सुरेश सर का नंबर लेके उस पर आप भेज दीजिएगा. ठीक है. हाँ, so how much change is required in sales? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को 20% से बढ़ाना चाहती है फर्म, तो सेल्स कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 10 से. क्यों? हाँ, क्या है 2 टाइम्स? फाइनेंशियल लेवरेज ऑपरेशनल लेवरेज का 2 टाइम्स होता है, इसलिए तो ऊपर जाता है. फाइनेंशियल लेवरेज ऑपरेशनल लेवरेज का 2 टाइम्स है. तो इसलिए नहीं, डिवाइड कर देंगे. ऑपरेटिंग लेवरेज खुद में 2 टाइम्स है. ये जो पोर्शन है ना, तो मैं 5% होगा, सॉरी 5%. नहीं 10% ही होगा, बट ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल, ये पोर्शन जो होता है ना इंटरेस्ट की वजह से जो चेंज आता है वो होता है फाइनेंशियल लेवरेज. ये जो चेंज आता है वो होता है ऑपरेटिंग लेवरेज. तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज का 2 टाइम्स है. ऑपरेटिंग लेवरेज इटसेल्फ इज 2 टाइम्स. ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2 टाइम्स. इस 2 टाइम्स का मतलब क्या है? इस 2 टाइम्स का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर 10% चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपका 20% चेंज आएगा. ठीक है, अब ये चेंज किस वजह से आ रहा है, रीजन क्या है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला वाज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इधर से इधर आप पहुंचते हो तो किस वजह से चेंज आता है? कंट्रीब्यूशन से EBIT तक आने के लिए यू सब्ट्रैक्ट फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, तो जो भी चेंज आ रहा है इन दोनों के बीच में, जो इतना भी गैप है, इज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, तो ये भी जो आता है ये कब आता है? जब फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करता है. सपोज करो फर्म का कोई फिक्स्ड कॉस्ट था ही नहीं. ठीक है, इट वाज निल, कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है फर्म की. हाइपोथेटिकली वी आर अज्यूमिंग कि ये निल है. ठीक है, तो जो कंट्रीब्यूशन है वही आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा. ठीक है, फिर तो आपको कोई लेवरेज है ही नहीं. लेवरेज कब अराइज होता है? लेवरेज ओनली अराइजेस व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट.
ठीक है, तो लेवरेज एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमारा क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। अब सपोज करो कि आपका सेल्स कम हो गया 10% से, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट करो कि ये कितना हो जाएगा, 1200. You are saying it will increase. So now this will be 1200. That is, as per you, this is the right answer, right? Anyone else? मेरे ख्याल से 600 आएगा। 600 आएगा, ओके। अभी 600 कैसे कैलकुलेट किया? मैम क्योंकि अगर बढ़ रहा है तो फिर वो नीचे भी बढ़ेगा, कम हाँ, हो रहा है तो नीचे भी कम हाँ, होगा, ऊपर 10% है, हाँ, फिर नीचे 20% हो जाएगा, ये हाँ, और फिर इधर 40% हो जाएगा। so there, here this will be minus 40%, so this will be 600, राइट। ये इसका 4 टाइम्स चेंज होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर ये कम हो रहा है तो दिस विल ऑल्सो डिक्रीज, और जब ये 40% डिक्रीज हो गया 1000 से, सो इट विल बी 600। वेरीफाई भी कर सकते हैं, चलो वेरीफाई करें। 10% सेल डिक्रीज हो गया, तो अब कितना हो गया, 9000 रुपीज। ये भी 10% डिक्रीज हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। अब हाउ मच दिस विल बी, 5400। now your contribution will be 3600. Your fixed cost were, how much was the fixed cost initially? 2000, right? So fixed cost is rupees 2000. This will be 1600. Now you will subtract interest, which is 1000 rupees. So this will be 600, right? Now suppose अगर किसी कंपनी ने लोन ले ही रखा जिसमें इंटरेस्ट ही ना पे करना पड़े, तब भी मैम 40% नहीं होगा? नहीं, देन फाइनेंशियल लेवरेज विल बी जीरो ना। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपका फाइनेंशियल लेवरेज जीरो हो जाएगा। कंबाइंड लेवरेज तो क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज इनटू ऑपरेटिंग लेवरेज। जब फाइनेंशियल लेवरेज है ही नहीं तो सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज बच गया, तो दैट विल बी ओनली 2 टाइम्स, राइट। तो अगर मतलब यहाँ पे 1000 होता ही नहीं, सो दिस वुड बी 2000, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा फिर ये 4000 डिवाइडेड बाई 2000, कंबाइंड कितना होगा? कंबाइंड का क्या फॉर्मूला होता है? कंबाइंड लेवरेजेस इधर यू मल्टीप्लाई और कंट्रीब्यूशन, so contribution now is 4000, profit before tax is 2000, so this will be 2 times only, right? Now suppose sales has increased by 40%. So what will be the impact on profit before tax? जब ऊपर से नीचे आते तो क्या करते हैं? ऊपर से नीचे आते तो करते क्या? मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से यहाँ आने के लिए कौन सा लेवरेज लगेगा? फाइनेंशियल लगेगा। फाइनेंशियल यहाँ से यहाँ आने में लगता है,
दिस इज फाइनेंशियल, दिस इज ऑपरेटिंग। यहाँ से पूरा जब आप नीचे आते हो दिस इज कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज हमारा कितना था? 4 times. So 160%. So we'll multiply 40 with 4. This will be 160%. 160% increase. Right? Any doubt till here? तो मैं क्वेश्चन करें? Yes, ma'am. Should I raise it? Yes, ma'am. क्वेश्चन में दिया है सेल्स ऑफ XYZ, एक XYZ कंपनी है, उसका सेल्स है ₹15 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है ₹8,40,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 1,20,000, डेट है उनका 9 लाख का एट द रेट ऑफ 9%, ठीक है। इक्विटी है कंपनी में जो लगा हुआ है ₹11 लाख। नाउ 3 पार्ट है जो आप लोग करने हैं। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन यू हैव टू कैलकुलेट operating leverage and financial leverage. Third part is if the sales drop to ₹9 lakh, what will be the EBIT? At the rate of 9%. So shall we start? शुरू करें या फिर आप लोग कर रहे हो कैलकुलेट? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेल्स कितना है? 15 lakh. 15 लाख। अब क्या करेंगे इसमें से लेस? Variable cost. वेरिएबल कॉस्ट विच इज 1,40,000. 8,40,000. So your contribution will be 6,60,000. Now what we will subtract? Fixed cost, which is so your
EBIT will be 9%. now we'll subtract interest, which is 9% of 9 lakh, which will be 81,000. So the profit before tax will be 4,59,000. फाइन. सो अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? यहाँ पर व्हेन आई ऐड डेट एंड इक्विटी तो क्या आ जाएगा फर्म का? 9 lakh is debt and 11 lakh is equity. So what will this give me if I add both of them? Capital employed. जितना भी फर्म ने कैपिटल लगा रखा है, whether in the form of debt or equity. So the capital employed will be 20 lakh rupees. Right. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? कितना इन्वेस्ट किया उसमें मुझे कितना अर्न हुआ. ठीक है. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज EBIT divided by capital employed. Right. So how much is the earning before interest and tax? 5,40,000. How much is the capital employed? 20 lakh. When we'll divide how much this is, and you'll multiply it with 100 to convert it into percentage. कितना आ रहा है? $20 lakh. 0.27 यानी 27%. So return on investment is 27%. पहला पार्ट हो गया. EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड. फाइन. एनी डाउट एनीवन? सो सेकेंड पार्ट में मूव करें. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज. ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स. Contribution divided by EBIT. How much is the contribution? 6,60,000. And how much is the EBIT? 5,40,000. कितना आ रहा है? Not the difference. मैम 1.22. 1.22 times. What does this signify? मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हम 1% चेंज करते हैं सेल्स में तो हमारा EBIT में कितना परसेंट चेंज आएगा? 1.22. 1% वो इंक्रीज होगा तो ये 1.22% इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. फाइनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? ऐसा नहीं होता है कि 2 टाइम्स होता है इसका. उस क्वेश्चन में इट वाज 2 टाइम्स. देयर यू हैव टू कैलकुलेट जैसे ये कैलकुलेट किया. मैम हर बार डिफरेंस होगा वो. हाँ. EBIT अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स. EBIT अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स. How much is EBIT? मैम 5,40,000. How much is profit before tax? 4,59,000. कितना आ रहा है? 1.20. 1.20 times.
अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर EBIT 1% चेंज होता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 1.2 टाइम्स चेंज होगा। ठीक है, अगर कंबाइंड लेवरेज निकालना होता तो क्या कर देते हैं, multiply, right? So we'll multiply operating leverage with financial leverage, which will be 1.22 into 1.2. वो है सॉरी मिस 1.17 1.17 होगा ना शायद। So that will give you the combined leverage. 1.4274 Now shall we move to the third part? यस मैम। If sales drop to 9 lakh तो EBIT कितना हो जाएगा? नहीं, ये सिर्फ सिग्निफाई कर रहा है, अगर 2% होगा यहाँ पे चेंज तो ये अकॉर्डिंगली उस 2% का 1 आप 2% इंटू 1.2 टाइम्स कर दोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 1% के उसमें बताते हैं, जैसे मार्जिनल होता है ना कि 1% इंक्रीज हुआ तो ये होगा, अगर 2% होगा तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर दिस चेंजेस आए 4% तो आप 4% से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ, जैसे अभी ये थर्ड पार्ट करो, अगर 9 लाख हो जाता है सेल्स तो EBIT कितना हो जाएगा? मैम ये तो 60% डिक्रीज हो रहा है जैसे सेल, तो मैम EBIT में शॉर्टकट के लिए क्या करेंगे, उसका भी 60% कम कर देंगे। उसका भी 60% नहीं करेंगे, जितना टाइम्स है यहाँ से यहाँ पे क्या है ऑपरेटिंग लेवरेज, तो इसका राइट, 60 को इंटू 1.22 एंड देन दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। ओके सेल्स कितना हो गया है 9 लाख, मैम 3,95,280 3,95,280 हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ओके विल चेक। देखो 9 लाख है, अब कितना परसेंट चेंज हुआ, 60%। दिस इज 6 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। चेंज के लिए क्या करेंगे, कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल अमाउंट, राइट। परसेंटेज चेंज जब निकालना है तो हम देखेंगे इधर से इधर चेंज कितना है 6 लाख रुपए का डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जितना था, तो कितना परसेंट आ गया, %40, राइट। तो कितना परसेंट चेंज आया है, 40% से सेल्स आपका डिक्रीज हो गया है, राइट।
EBIT क्या है, यहाँ से यहाँ पे क्या होता है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा कितना था 1.22, तो यहाँ से यहाँ जब जाना था तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। सो 40 इंटू 1.22 which will be 48.8% change will be in EBIT. So EBIT will decrease by 48.8. डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि सेल्स डिक्रीज हुआ है, राइट। सो 48.8% ऑफ 5,40,000 विल बी 2,63,520 will be 48%. हाँ मैम 2,63,520. 63,520 So if you subtract this 2,76,480 will be our EBIT. yes 2,76,480. Let me check. $2,76,480. Okay. अब इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। yes मैम दिस इज 9 lakhs, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा अब 3,36,000। कैसे आया 40% और 40% ऑफ दिस। लेकिन जब वेरीफाई करते हैं तो हम वो वाले वैल्यूज़ यूज़ नहीं करते। जब हम वेरीफाई करते हैं तो हम सिंपल अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि वेरीफाई दिस, तो हम क्या करते हैं इसका इसको निकालते हैं, ठीक है। 8,40,000 इसका कितना परसेंटेज है 40%। मैम 9,15,000 लाख का 40% है ना 9,15,000 लाख का 40% है ना, तो वो भी 40% डिक्रीज है, 60% है उसका। 15 लाख का 60% 9 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शन में चेंज होता है ना। अभी आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कितना परसेंट है वो, ठीक है। डिवाइडेड बाय 15 लाख विल बी 56%। तो ये इसका कितना परसेंट है 56%। तो ये इसका कितना परसेंट होना चाहिए 56%। तो 9 लाख का 56%, 5,04,000। So now this will be 3,96,000 will be what contribution, right। अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो फिक्स रहेगी 1,20,000। So this will be 2,76,000। तो पहले भी 2,76,000 आना चाहिए था। मतलब उस वाले कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम था। तब आया था जब सब चीज़ों को 60% किया था मैंने मेन वैल्यू से, लाइक 15 lakhs था उसका फिर 9 lakh किया मैंने, और 8,40,000 का 60% एग्जैक्ट 5,04,000 आता है। सो यू सेड कि अब 60% है उसका, 15 लाख से 9 लाख हो गया, तो कितना हो गया 40% डिक्रीज हो गया, राइट। 6/15 40% से डिक्रीज हो रहा है।
40 into 1.22, which will be 40 into 1.22, 48.8. 48.8 से क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, इंटू 5,40,000 which will be 263520 minus 5,40,000, 276,480, यही आ रहा था ना पहले में, तो वेरीफाई क्यों नहीं हुआ? वेट इधर 1.22 what we divided 660 divided by 5,40,000, right? So it'll be 2222, maybe digits की वजह से नहीं हो रहा है, there are multiple twos, huh? हाँ, डिजिट्स की वजह से नहीं हो रहा है. अगर हम इसको ये नहीं करते ना शॉर्ट 2222 रख के देखो, सो इट बी 2,64,000 ओनली. ये डिफरेंस डिजिट्स की वजह से आ रहा है 480 रुपीज़ का, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स तक लिया है ना. मैम इतना डिफरेंस चल सकता है एग्जाम में? अगर वेरीफाई करना है तो फिर उधर भी इधर भी आप वैसे ही करो. अगर वेरीफाई करने को आता है तो आपका देखना पड़ेगा आपको कि दोनों सेम ही आए. अगर सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेट करने को आए तो ये चल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ डिजिट्स की वजह से आ रहा है. अगर आप उसको कट शॉर्ट नहीं करोगे, पूरा 2222 रखोगे तो इतना ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर अब हम सेल्स को इस इक्वेशन में चेंज कर देते हैं, सेल्स हम कर देते हैं 20 लाख, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है. सेल्स नाउ इज 20 लाख.
आया किसी का? 0 0 जो लास्ट डिजिट है ना 2,76,000 में हाँ इससे मैच कर रहा है तो 412 ही है 1.2222 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2,76,004 रुपीज़ है। अच्छा, आपने EBIT कैलकुलेट किया है, पर इस वाले केस में ये कैलकुलेट करना है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होता है तो कौन सा लेवरेज यूज़ करते हैं हम लोग? कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज हमारा कितना आ रहा था? 1.22 इंटू 1.17 विच विल बी 1.438। ठीक है, अब हमारा सेल्स कितना हो गया है? 20 लाख। तो कितना चेंज आ गया है? 5 लाख डिवाइडेड बाय 15, राइट, विल बी 33.33। अब यहाँ से यहाँ जब जाने तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 33.33 को इंटू 1 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1.438। कितना आएगा ये? 47.92। तो अब हमारा सेल PBT कितने से इंक्रीज हो जाना चाहिए? 47.92। मतलब कि 47.92 इसका कितना हुआ? 4,59,000 का 47.92%। 2,59,000 का 47.92%। 2,19,991.9986। 2,991 सो विल ऐड दिस। ठीक है, इसके अंदर 4,59,000 में this will be 6,78,991 will be the new profit before tax. क्लियर है यहाँ तक सबको? Should I erase this? परसेंटेज को लेकर चलना है, फिर प्रोसेस करके देखना है ऊपर। अगर उधर वैसे परसेंटेज को यूज़ करके करना है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि ये हो जाते हैं देन वेरीफाई, आपको वेरीफाई करके दिखाना है दैट आपने जो उस लेवरेज वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया वो ठीक है, तब आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। नहीं तो विल यूज ओनली परसेंटेज, डायरेक्ट निकालेंगे। मैम एक बार बस वो बता दो वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? 33.33। वेरिएबल कॉस्ट इसका 56% बढ़ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट सेल से प्रपोर्शन में होती है ना। अगर मैं 10 रुपये का पेन बेचती हूँ और मैं कहती हूँ उसका मेरा कॉस्ट आता है 6 रुपये, तो अगर मैं 2 पेन बेचूंगी 20 रुपये का तो मेरा कॉस्ट डबल हो जाएगा ना, 12 रुपये हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग जब सेल्स ये इसका जितना प्रपोर्शन रहता है, सेल्स बढ़ता है या कम होता है, उसी प्रपोर्शन में कम होता है। तो ये 56% इसका है, तो यहाँ पे भी 56% रहेगा। कैलकुलेट कर सकते हो कितना आया? वैसे तो आप वेरीफाई करना है तब आप इस तरीके से जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप उसका लेवरेज वाले का यूज़ नहीं करना चाह रहे। नहीं तो आप जैसे यहाँ पर अगर सिर्फ डायरेक्ट लेवरेज का यूज़ कर रहे हो ना, तो ये कितना चेंज हुआ? 33.33 बढ़ गया ना। ये भी 33.33 ही बढ़ेगा क्योंकि सेम प्रपोर्शन में चेंज आता है। ये 33.33 ही बढ़ेगा, लेकिन जब हम लेवरेज यूज़ नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्या होता है कि इसके प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट आपका चेंज होता है, सेल्स के प्रपोर्शन में। हाँ, उस तरीके से भी कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसे कैलकुलेट करके। लेकिन जब आप वेरीफाई कर रहे हो ना, आप वेरीफाई करने का क्या मतलब हुआ कि आप ये वाले फॉर्म बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट इसके तरीके से जा रहे हो। क्योंकि अगर आप
वेरीफाई करने का तो ये मतलब है ना कि हम उस चीज़ को होल्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब साइड रख दिया बिल्कुल। अगर हम इसको ही ट्रू मान रहे हैं तो फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा, फिर तो ऑब्वियसली आ जाएगा। चेंज तो ऐसे तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन एज वेल, वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 33.33 इधर आया तो कंट्रीब्यूशन में भी चेंज 33.33 का ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? Now suppose the question says कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख रुपीज हो गया है। नाउ कैलकुलेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड हाउ मच चेंज विल देयर बी इन सेल्स। यहाँ से यहाँ जाने के लिए कौन सा लेवरेज यूज होता है? फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज हमारा कितना है? 1.17 आई गेस है, 1.17। यहाँ से यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है परसेंटेज में? 60,000 डिवाइडेड बाय 5,40,000, राइट? %16.67 चेंज आ रहा है। So this has increased by 16.67%. दोनों के बीच का डिफरेंस 6 लाख माइनस 5,40,000 डिवाइडेड बाय 5,40,000 द ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100 कितना आ जाएगा? 60,000 5,40,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल जो होता है उस पे ही तो आप चेंज कैलकुलेट करते हो। अगर मैं कहती हूँ 100 से 110 हो गया है तो कितना परसेंट चेंज आया? 110 माइनस 100, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 10%। This is 11.11. 60,000 divided by 5,40,000. हाँ 11.11। तो कितना चेंज आया? 11.1। अब जब यहाँ से यहाँ जाने तो क्या करेंगे? 1.17 So we'll multiply 11.11 into 1.17, which will be 12.99। So हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 12.99 से। 4,59,000 का 12.99 कितना होता है?
विल बी द आंसर। 6 लाख करेक्ट, ऐड कर लीजिए। 6 लाख को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? नहीं 6 लाख को नहीं करेंगे ना, जो ये चेंज आया है यस मैम। इसको करेंगे ताकि हमें पता चल सके इधर क्या चेंज आएगा। फाइनेंशियल एवरेज क्या बताता है? फाइनेंशियल एवरेज बताता है कि अगर इधर 1% का इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो कितना टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। उसने हमें बताया, फाइनेंशियल एवरेज ने बोला कि अगर 1% का इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो यहाँ पे 1.17 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो हमने निकाल लिया कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 11.11% से। मतलब मैं पहले 11% इंक्रीज होगा, फिर उसका 1.77 हाँ कि मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 11.11% इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर 12.99% का चेंज आएगा, इंक्रीज होगा। तो इसका 12.99% निकाल के विल ऐड और हमारा नया वाला पीबीटी आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे? सेल्स निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे किससे? 1.22 से। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा कितना है? 1.22 और नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो इधर 11.11 को डिवाइडेड बाय 1.22 कितना आएगा? 9.1 9.106। सो 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कितने से बढ़ेगा? 9.11 से। इसका 9.11 निकालेंगे एंड विल ऐड, तो हमारा नया सेल्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? कोई भी डाउट? लेवरेज में अभी तक, मतलब पूरे लेवरेज में कोई भी डाउट है? फिर हम डिविडेंड डिसीजंस शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चंस करने हैं? बाकी तो प्रैक्टिस रहेगा, आप कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए, वो घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, इरेज कर दूँ इसको? स्टॉक पे जो डिविडेंड मिलते हैं वो इधर से डिसाइड होता है कि डिविडेंड दे या नहीं दे। ठीक है, एक फर्म को डिसाइड करना होता है कि ये है आपका बेसिकली डिविडेंड डिसीजंस एंड वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म। अब एज एन इन्वेस्टर यू वांट कि हमें डिविडेंड मिले। डिविडेंड क्या होता है? जो सब कुछ निकालने के बाद प्रॉफिट बचता है शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, लेकिन एज अ फर्म आप आगे ग्रो करना चाहते हो। अब जब आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि मैं उस ग्रोथ के अंदर जो मेरा प्रॉफिट आया उसको इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि वो थोड़ा चीप होता है, आप मार्केट से रेस करो उससे। तो एक फर्म चाहती है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करे, उससे अपनी ग्रोथ में लगाए, और एक इन्वेस्टर चाहता है कि उसको डिविडेंड मिल जाए। ठीक है, उसका इनकम है वो। ठीक है, तो यहाँ पे उसे डिसाइड करना होता है कि कितना डिविडेंड वो दे दे या फिर रिटेन करे। तो इसके अंदर आपके बेसिकली 3 मॉडल होते हैं। एक वॉल्टर होता है, गॉर्डन होता है और एमएम होता है। ठीक है, वॉल्टर और गॉर्डन अप्रोच क्या कहते हैं कि रेलेवेंस होता है, आप कितना डिविडेंड देते हो उससे फ़र्क पड़ता है आपकी वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म। अब वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म कैसे निकालते हैं? हमें क्या पता कि कैसे मतलब चेंज आया वैल्यूएशन पे? जो भी हमारा प्राइस चल रहा होता है, शेयर प्राइस चल रहा होता है मार्केट में, अगर शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो इसे कि डिविडेंड की वजह से हमने डिविडेंड ज़्यादा दिया तो शेयर प्राइस हमारा बढ़ गया। ठीक है,
या फिर डिविडेंड हमने नहीं दिया उससे क्या चेंज आया, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस ऑफ अ शेयर से, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका वॉल्टर अप्रोच। तो हर मॉडल अप्रोच के अजम्पशंस होते हैं कुछ, ताकि वो उस अजम्पशंस पे ही काम करता है ताकि एक स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। सिर्फ ये मेजर किया जा सके कि डिविडेंड की वजह से वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म पे कितना चेंज आएगा, फर्क आएगा नहीं आएगा। तो वॉल्टर अप्रोच में दो अजम्पशन वो बेसिकली लेता है। एक तो अजम्पशन लेता है कि जो भी कंपनी इन्वेस्ट करती है अपने फर्म में वो अपनी रिटेन्ड अर्निंग से करती है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, जो डिविडेंड उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अपने पास रख लिया। तो अगर मैं किसी प्रोजेक्ट ए या बी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो ये अज्यूम करते हैं कि बाहर से कैपिटल रेज नहीं करेगी फर्म, जो जितना पैसा उनके पास है सिर्फ वहीं से वो वही पैसा लगाएगी, ठीक है। सो रिटेन्ड अर्निंग्स are the only source of finance. Source of investment, ठीक है। दूसरा assumption क्या बोलता है वॉल्टर, कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रेट ऑफ रिटर्न जो है इज कांस्टेंट, ये सेम रहता है। तो बिजनेस रिस्क जो है आपका वो सेम रहता है, उस पर कोई चेंज नहीं आता और ये दोनों वैल्यूज आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कि शेयर होल्डर्स जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न दिया जा सके। तो वॉल्टर अप्रोच के अंदर 3 कंडीशन आती हैं, 3 वो कहते हैं सिनेरियो हैं, ठीक है। आर क्या है, बेसिकली आपका इनकम है। इनकम कैसे है कि आप कितना रेट ऑफ रिटर्न है, आप कितना पैसा लगा रहे हो तो उस पर आपको कितना अर्न हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 10 रुपये लगा रही हूँ और मेरा रेट ऑफ रिटर्न 11% है तो मतलब कि मुझे उसका 11% इंक्रीज होके मिलता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये, तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट है। अब वो कहते हैं 3 सिनेरियो हो सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1 कि आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, मतलब कि मेरा इनकम ज़्यादा हो गया मेरे कॉस्ट से, ठीक है। तो एज अ फर्म मैं जितना कमा रही हूँ वो ज़्यादा है जिस कॉस्ट पे मैं उस पैसे को उठा रही हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए इस केस में, नहीं देना चाहिए इस केस में, मतलब कि मैं एज एन फर्म ज़्यादा कमा के दे रही हूँ अपने इन्वेस्टर्स को जितना कि उन्हें मार्केट से मिलता। ये क्या है, डिज़ायर्ड रेट होता है, इक्विटी होल्डर जितना मांगता है, ठीक है। तो अगर वो मुझसे 10% मांग रहा था एज अ कॉस्ट, मैं उसको 12% दे रही हूँ अपने फर्म में पैसा लगा के, तो मैं उसे क्यों वापस करूँ, मैं इस पैसे को अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करूँगी, ठीक है। तो ये क्या काइंड ऑफ फर्म होती है, ये होती है ग्रोइंग फर्म होती है, ठीक है, जिनका रेट ऑफ रिटर्न उनके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा होता है। ऐसे फर्म्स को वॉल्टर क्या कहता है कि इन्हें डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए, रिटेंशन इनका 100% होना चाहिए। 100% रिटेंशन मीनिंग डिविडेंड इज 0%, कुछ भी डिविडेंड ना दे, सारा पैसा अपनी ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो है सारा अपना पैसा उसके अंदर लगाएं और ज़्यादा रिटर्न करके इन्वेस्टर्स को वापस करें, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि रेट ऑफ रिटर्न आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, मतलब मैं जो अर्न करके दे रही हूँ वो मेरे कॉस्ट से कम है। अगर मैंने 10% पे उठाया था पैसा तो मैं सिर्फ 5% अर्न कर रही हूँ। तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए मुझे, ये एक डिक्लाइनिंग फर्म है, ठीक है। इस टाइप के फर्म को सारा का सारा % एज अ डिविडेंड दे देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर अगर उसे मार्केट में लगा देगा
ये अगर 10% चल रहा है और वो सिर्फ 5% अर्न करके दे रहे हैं, तो अगर वो इन्वेस्टर को वापस कर देंगे, इन्वेस्टर उसको मार्केट में लगाएगा तो उसको 10% तो मिलेगा, इनके 5% तो ज़्यादा है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इन्वेस्टर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, वॉल्टर कहते हैं कि इस केस में आपका रिटेंशन होना चाहिए 0 और आपका डिविडेंड हो जाना चाहिए 100%। जो आप पे आउट कर रहे हैं, पे आउट रेशियो शुड बी 100% एंड रिटेंशन रेशियो शुड बी 0%। आप कुछ रिटेन मत करो, सब कुछ एज अ प्रॉफिट अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है, R इज इक्वल्स टू के, ठीक है। इनकम और कॉस्ट सेम है, तो इन दिस केस फर्म इज इनडिफरेंट, मार्केट में भी उतना ही रेट मिल रहा है और हम भी उतना ही रेट अर्न करके दे रहे हैं, तो या तो अपने में लगा लो या फिर उनको वापस कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा इन्वेस्टर के वेल्थ पे, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो वॉल्टर कहता है। अब वैल्यू ऑफ अ फर्म कैसे निकालेंगे, प्राइस से, जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट बताया आपने, हाँ इसके अंदर 10% जो है हमारे इन्वेस्टर्स की डिमांड है, हाँ, और 12% हम अर्न कर रहे हैं। हम 12% आता है। तो अगर वो मैं उसको ये पैसा वापस कर देती हूँ और वो इन्वेस्ट करता है तो उसको 10% मिलेगा, लेकिन अगर वो मेरे साथ ही उस पैसे को रखता है तो उसको 12% पर ईयर उसका पैसा बढ़ता रहेगा, तो विच इज़ मोर बेनिफिशियल। तो वो तो इन्वेस्टर के ऊपर है ना, वो कब विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ तो वो कर सकता है। नहीं नहीं, तो फर्म कर रही है ना। फर्म एज अ फर्म हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करना। वो तो हर शेयर होल्डर पेक्यूलियर होता है, ठीक है। मुझे हो सकता है, मैं तो चाहती हूँ हर महीने मुझे डिविडेंड मिले, एक स्टेबल इनकम चाहिए मुझे, एज अ सोर्स ऑफ इनकम मैं उसे देखती हूँ, ठीक है। तो मेरा वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एक फर्म क्या चाहती है कि उसको मैक्सिमम रिटर्न वापस करें एक शेयर होल्डर को। तो उसने देखा कि अगर मैं शेयर होल्डर को वापस कर दूंगी ये, तो ये 10% उसको अर्न होएगा, लेकिन अगर मैं अपने ही फर्म में लगाए रखती हूँ, अब सपोज करो इसने ये इसको बांट दिया, ठीक है, इसने इसको ही बांट दिया, अब वो कैपिटल मार्केट से उसे उठाना पड़ेगा, मार्केट से एज अ हायर रेट उठाएगा फर्म। जब हायर रेट उठाएगा तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पे आएगा, इन्वेस्टर की इनकम पे, क्योंकि उस पर उसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एज अ रिजल्ट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका EPS भी डिक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो इन्वेस्टर अर्न करेगा वो लेस होगा, ठीक है। तो वो दोनों सिनेरियो को कंपेयर करते हैं कि मार्केट में उसको 10% मिलता, मैं उसको 12% दे रहा हूँ एज अ फर्म, तो मेरे को क्या करना चाहिए, अपने में इन्वेस्ट करना चाहिए उसके पैसे को या उसको मार्केट में लगा देना चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, हम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो हम डिविडेंड, वॉल्टर ऐसा कहते हैं कि डिविडेंड उन्हें नहीं देना चाहिए और 100% रिटेन करना चाहिए। ऐसा वॉल्टर का मॉडल है। मिक्स मैच भी हो सकता है, फर्म मार्केट कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है इन्वेस्टर वांट्स डिविडेंड, तो फर्म डिसाइड करे कि कुछ परसेंट 10% हम डिविडेंड दे देते हैं, बाकी 90% हम रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं बेस्ट केस सिनेरियो इसके अंदर क्या है कि आप अपने अंदर लगाओ, अपनी ग्रोथ के अंदर, और फिर इन्वेस्टर को वो पैसा वापस करो, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ अ फर्म कैसे निकालेंगे, प्राइस से। वॉल्टर मॉडल के अंदर प्राइस का फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड, विच विल बी, अर्निंग पर शेयर में से डिविडेंड माइनस कर देते हो तो क्या बच जाता है, रिटेंशन, कि कितना आपने रखा। 10 रुपये मेरा अर्निंग पर शेयर था, मैंने 4 रुपये डिविडेंड मार दिया, तो मतलब 6 रुपये मैंने रख लिया, ठीक है। इनटू में रेट ऑफ रिटर्न, तो ये 6 रुपये मैंने रखा है, उस पर कितना मैं रिटर्न अर्न करूँगी, डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दिस एंटायर डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये उसमें प्राइस ऑफ अ शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वॉल्टर देता है। इनटू में R डिवाइडेड बाय KE, रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, यहाँ तक इस पर क्वेश्चन करें।
इरेज कर दूँ? यस मैम। एक ABC लिमिटेड फर्म है, उसका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज़, ठीक है। उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 0.10, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर फाइंड करना है, P हमें कैलकुलेट करना है। और हमारे पास 3 डिफरेंट सिनारियोज हैं, 3 डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न है और 4 डिफरेंट रेट ऑफ पे आउट रेशियोज हैं, ठीक है। तो मैं रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे लिख रही हूँ और पे आउट रेशियोज यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा और यहाँ पे आपका पे आउट रेशियो है। एक बार है रेट ऑफ रिटर्न आपका 8%, 10% एंड 15%। पे आउट रेशियोज हैं आपके 0%, 40%, 80% एंड 100%। तो इन सारे सिनेरियोज में आपको प्राइस कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करें? प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड इनटू में आर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं, दैट इज ये और ये, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, आपका डिविडेंड कितना हुआ, पे आउट रेशियो 0, मतलब कि हम एक भी नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे रहे, तो डिविडेंड हमारा कितना हो जाएगा? 0। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.10। 10, ठीक है। अर्निंग पर शेयर हमारा कितना है? 10, 0 हमने दिया है, ठीक है। इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 8%। 8% मतलब 0.08 यस मैम। डिवाइडेड बाय 0.10 अपॉन में 0.10। अब इसे कैलकुलेट करो, ये तो 0 जाएगा। मैम ये 0 होगा 110।
10 into 0.8, टेन इंटू 0.8 divided by 0.1, right? तो कितना आएगा? 8 इंटू 10 विल बी 80 रुपीज। तो यहाँ कितना आ गया? मैम 0.8 इंटू 10 तो 8 होगा ना? 0.10 इंटू 8 8 होगा नहीं ना, 0.0 से डिवाइड भी तो कर रहे हो। सॉरी 80 रुपीज। ठीक है, पहला आ गया। यस मैम। अब सेकेंड सिनारियो 40% है पे आउट रेशियो। 40% ऑफ व्हाट? 8% डिविडेंड। 40% किसका निकालेंगे? रिटेंशन रेशियो 40% है, मतलब 40% किस में से देते हैं? मैम अर्निंग पर शेयर में से। तो 40% किसका निकालेंगे? 10 रुपये का। 10 रुपये इसमें से जिसमें से हम 40% पे आउट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दे रहे हैं एज अ डिविडेंड। तो कितना हो जाएगा? 4 रुपीज़ minus 4 into, now in this case 8%, so 0.08 divided by 0.1, this will be 40 plus 6 into this is 0.8 हो जाएगा। 0.08, हाँ। हाँ तो मैम 0.8 हो जाएगा अगर डिवाइड करेंगे 0.1 से। So this will be 8 into 6 will be 48. So this will be 40 plus 48, 88. Right? अगले का कैलकुलेट करो। डिविडेंड कितना होगा? जल्दी जल्दी करेंगे। 80% है तो 8 रुपये, 0.1, 10 में से 8 गया 2 रुपये, इंटू में 0.8, सो दिस विल बी 80 प्लस 8 इंटू 2, 16, ये आ जाएगा 96। 100 कर दिया मतलब 10, इधर वाला तो सब जीरो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.1, दिस विल बी 100, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट पे रिटेंशन पे आउट डिविडेंड कितना है? 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया। उसके बाद आपका अर्निंग पर शेयर है 10, ये 0 है, इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, राइट। तो 10 आ जाएगा। 10 ये ऊपर चला जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में 4 है, मतलब 4 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस दिस विल बी 6 इंटू R is 40, no, R is 10% divided by 1, this will be, so this will be 40 plus 60, 100। अभी आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये सारे चारों ही 100 आएंगे,
ठीक है, अब उससे नेक्स्ट पे मूव करें। डिविडेंड 0 तो ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, आर है 15% तो 0.15 डिवाइड बाई 1, so this will be 1.5 into 10, 15 around 150. ये 150 हो गया। Yes, ma'am. 4 divided by 0.1 plus 6 into 0.4, no, 0.15, 0.1, this will be 40 40 plus 90. plus 6 into 1.5, so that will be 15 into 6, Yes, ma'am. which will be 90. 90, Or about the 90. so this will be 130. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बीच में। मैम रिटर्न पड़ रहा है तो डिविडेंड हम कम दे रहे हैं, पे ऑफ। अभी बताते हैं। अब इस वाले में कितना हो गया, 8, टू इंटू 15, 30, 110, लास्ट में 10, 0.1 प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, राइट, सो दिस विल बी 100 ओनली। अब देखो इससे वॉल्टर का मॉडल कैसे प्रूफ हुआ, जब हमारा R 8 है, K तो K इज कांस्टेंट दैट इज 10%, ठीक है। अब इस केस में क्या है, R हमारा मतलब रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, तो वॉल्टर क्या कहते हैं इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, डिविडेंड 100% दे देना चाहिए, रिटेंशन 0 होना चाहिए। अब देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू प्राइस ऑफ, अगर देखें वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस से, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस कब आ रहा है, जब 100% हम दे रहे हैं, तो इस केस में वॉल्टर का मॉडल प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इस केस में दोनों इक्वल है, रेट ऑफ रिटर्न भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी, तो क्या है इधर इनडिफरेंट है, चाहे वो कुछ भी ना दे चाहे वो 100% दे दे, वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेगा, ठीक है। अब थर्ड सिनेरियो क्या है, रेट ऑफ रिटर्न हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, इस केस में वॉल्टर क्या कहता है, हमें सारा का सारा रिटेन करना चाहिए, 0% डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट प्राइस कब है, जब हम 0% दे रहे हैं डिविडेंड, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है, टाइम हो गया है, सो नेक्स्ट टाइम हम इसके रिमेनिंग 2 मॉडल जो हैं दैट इज गॉर्डन एंड MM वो पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजंस के। एनीवन हैज एनी डाउट, रितेश?